Assalamu alaikum everyone, and we today we it's our third session of computer programming in C language. And okay, I'm not muting. So today the topic that we will be discussing, that is about chapter number 3, and chapter number 3 is all about loops, what actually loops are and how loops work, what is the work of loop and all this. So we will be discussing all this. And one of the student has texted that do not mute. So okay, I haven't muted, but if anyone has any kind of question, then they can ask me, but just unmute yourself when you have to ask any kind of question. Okay, I'm sharing the screen. Okay, loops. What actually loops are? When we have certain kind of repetition, sorry, when we have certain kind of repetition, then we use loops. For example, someone has said me to print my name, or print my name 100 times. Okay, so what actually method I can follow is I can write printf statements, and I will be writing my name 100 times. Now say suppose someone has said me that write your name and your caste or something, or any statement he has said, that write that particular statement 1,000 times or 10,000 times. Now if I will be writing that statement again and again, printf Muhammad Ali, printf Muhammad Ali, printf Muhammad Ali, okay, अगर यो जेको असां लाइ जेको मे बी अंडरस्टैंडेबल आहे त आउं 50 टाइम्स लिखां, माना इट इज जस्ट लाइक अ पनिशमेंट इफ आई विल बी राइटिंग दैट पर्टिकुलर printf स्टेटमेंट 100 टाइम्स. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, असां जेको आहे हिकिड़ो हम जो है एक पर्टिकुलर जो है कोड की लाइन होती है, जिसको बोलते हैं, एक टेक्निक होती है जो होती है लूप. लूप के थ्रू क्या होता है, जब हमें कोई रिपीटेशन करनी होती है ना, जब भी हमें कोई चीज रिपीटेशन करनी होती है तब हम यूज करते हैं लूप. लूप में क्या होता है, basically there are three types of loop. So in programming, a loop is used to repeat a block of code until the specified condition is meet. जब तक कोई condition meet ना हो तब तक जो है हम जो है अपना जो है लूप काम करता रहता है या पर्टिकुलर कोड को रिपीट करता रहता है. तो सी प्रोग्रामिंग में बेसिकली जो है 3 टाइप के लूप होते हैं. एक होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप, एंड तीसरा होता है डू व्हाइल लूप. So this is just a introduction. Don't get confused that what is for, what is while, and what is do while. So there are 3 types of loops. First is for loop, second one is while loop, and third one is do while loop. There is a difference between for loop, while loop, and do while loop. So we will be discussing the working mechanism, what is the, how we will be using, or how we can use these loops, how we can use for loop. And for you loop is also said as counter loop. So basically the work of loops is as simple that when we have to do any kind of repetition, we use loops. So सी का जो है लूप का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, जब हमें कोई चीज रिपीटेशन करनी होती है, किसी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम चलाना होता है, तो हम लूप की टेक्निक यूज करते हैं. क्योंकि अगर मुझे कोई चीज 100 टाइम रिपीट करनी है ना, तो बजाय इसके कि मैं कोड अगेन एंड अगेन लिखता रहूं, अगर मेरे पास कोई एक ऐसी टेक्निक है कि मैं एक ही स्टेटमेंट लिखूं और वो सारा कोड मेरा जो है वो जो अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहे, तो मेरे लिए जाहिर सी बात है वही चीज जो है टाइम सेविंग होगी, तो मैं उसी को फॉलो करूंगा. तो जो है लूप उसी चीज को कहते हैं. ठीक है, लूप वही टेक्निक है. There are basically 3 types of loops. First is for loop, second one is while loop, and third one is do while loop. Okay, for loop syntax basically for loop जो कुछ हिन तरीके जो हूंदो आहे. Syntax means उन जो छा स्ट्रक्चर छा हूंदो आहे. First of all,
for loop आहे से सपोज, ठीक आहे, ही जेको आहे for तव्हांजो कीवर्ड आहे, ठीक आहे, जीअं असीं लिखंदा आहियूं न printf, अहिड़ी तरह सम्झो तव्हांजो for ही कीवर्ड आहे, ठीक आहे, पोइ तव्हांजी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट हूंदी आहे, देन तव्हांजी टेस्ट एक्सप्रेशन हूंदी आहे, देन तव्हांजी अपडेट स्टेटमेंट हूंदी आहे. दिस इज जस्ट साइंटेक्स ऑफ for loop. त for loop जो बेसिक स्ट्रक्चर छा हूंदो आहे, ठीकु आहे, उनखे फर्दर अॻियां असीं ॾिसंदासीं त छा आहे इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, छा आहे टेस्ट एक्सप्रेशन, छा आहे अपडेट स्टेटमेंट, छा आहे, इहे सभु शयूं असां एक्सप्लेन कंदासीं, ठीकु आहे. We will see them in deep and we will be doing programs according to that, but till now the syntax of for loop is like that. First of all, we have for keyword, then we have brackets over there, and then we have first of all initialization statement, a statement terminator, then we have test expression, statement terminated, and then last we have update statements. And this is the body of loop from this to this, और इसके बीच में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारी जो है बॉडी ऑफ द लूप कहलाएगी, और वही चीजें लूप में मतलब लूप उन्हीं पे काम करेगा. Now how for loop works, the initialization statement is executed only once. जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार जो है एग्जीक्यूट होती है, लाइक ही इज टॉकिंग अबाउट दैट इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट. लेट्स कम टुवर्ड्स प्रोग्राम. Initialization statement, yeah, what's happening with it? Yes, see, this is the structure. For, this is the keyword. I is the variable that is used inside the loop. I is equal to 1. This is initialize statement. This is test expression or condition. I is less than 11 and I plus plus or plus plus I. This is the increment or decrement operator. ठीक है, तो लूप जो बेसिक स्ट्रक्चर इहो आहे, ही लूप जी बॉडी आहे फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक आहे. printf जेको आहे हिन लूप जे जेको इनसाइड आहे, ठीकु आहे. त लूप जेको आहे असांजो हिन पर्टिकुलर स्टेटमेंट ते कमु कंदो, ऐं हिन प्रोग्राम खे अगरि असां रन कयूं था त हिन जो आउटपुट कुझु हिन तरीक़े जो अचे थो. हाणे हिन ई प्रोग्राम खे ॾिसो छा आहे बेसिकली. printf में आई जेको वेरिएबल आहे, ठीकु आहे, आई जी वैल्यू जेको 1 खां वठी लेस देन 11 मीन्स 10, 1 खां वठी 10 ताईं जेको आहे आई जी वैल्यू आहे, ऐं 1 बाय 1 उनखे प्रिंट करे पियो printf स्टेटमेंट जे ज़रिए, ठीकु आहे. त ॾिसो आउटपुट असां वटि जॾहिं इन खे कोड खे रन कंदासीं त इट विल बी लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाणे हिन जा ॿ तरीक़ा हुआ. हिकिड़ो त इहो लूप आहे, ॿियो इहो आहे तव्हां printf स्टेटमेंट लिखां, उन में लिखां printf %d, देन जेको आहे आई वेरिएबल जी जॻह ते 1 लिखां, वरी 2 लिखां, वरी 3 लिखां, या हर वारे जेको अलॻि अलॻि printf लिखी करे उनजी वैल्यूज़ लिखंदो वञा. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, जॾहिं मूं लूप जी टेक्निक यूज़ कई, मूं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु उनजी इनिशियलाइजेशन ॿुधाई त लूप शुरू किथां थो थिए, या लूप जी जेको इनिशियलाइजेशन किथां थी थिए. जीअं हिते जेको 1 आहे, ठीकु आहे, 1 खां लूप जी इनिशियलाइजेशन आहे, ऐं लूप जी जेको टेस्ट एक्सप्रेशन केस ताईं आहे, मीन्स केस ताईं लूप हलंदो. त आई इज़ लेस देन 11, लेस देन 11 मीन्स 10, ठीकु आहे. आई जेको आहे 1 खां अची 10 ताईं हलंदो, ऐं हर वारे आई में जेको आहे 1 टाइम जी इंक्रीमेंट थींदी वेंदी, ठीकु आहे. पहिरीं जेको आई जी वैल्यू 1 हूंदी न, ठीकु आहे, जॾहिं हिकिड़े दफ़ा वैल्यू प्रिंट थींदी न, हीअ जॾहिं बॉडी एग्जीक्यूट थींदी, उन खां पोइ आई जी वैल्यू 2 थींदी, देन अगेन जेको बॉडी जेको एग्जीक्यूट थींदी, जेन आई जी वैल्यू 3 थींदी, 1 बाय 1 हिन जी वैल्यू में इंक्रीमेंट थींदी वेंदी, ठीकु आहे. छो जो आई प्लस प्लस जो मक़सदु ई इहो आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन सी हियर, हिते आई इज इक्वल टू 1, ठीकु आहे. इनिशियली आई जी वैल्यू, यस सर आपने लेस देन 11 लिखा है, अगर हम लोग यहाँ पे लेस देन 20 और 21 कुछ भी लिख सकते हैं ना नंबर्स. यस, इट्स अप टू तो यू. सॉरी, मैंने कहा जो हम लोग वैल्यू लिखेंगे सिर्फ वहीं तक इंक्रीज होगा ना आई. बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज अप टू यू. जो कंडीशन आप लिखेंगे उसी की तरह से जो है लूप एग्जीक्यूट होगा. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ओवर हियर. सो दिस, ओके, नाउ लेट्स सी. ये जो है, मैं यही चीज दिखाने वाला था कि ये चीज ऐसे एक्चुअली होती है कि फॉर लूप का जो अगर हमने बेसिक प्रोग्राम देखा है, इसी के हिसाब से इसकी जैसे थ्योरी है कि बोल रहा है द इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, ठीक है. इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट जेकी आहे उहा सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट मां मुराद जेकी फर्स्ट वारी जेकी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट आहे, जीअं हिते जेको तव्हांजो आई इज इक्वल टू 1 आहे, ठीकु आहे. हीअ सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकु दफ़ा एग्जीक्यूट थींदी,
ठीक है, then the test expression is evaluated, ठीक है, उन खां पोइ जेकी टेस्ट एक्सप्रेशन थींदी like I is equal to 11, ठीक है, टेस्ट एक्सप्रेशन is evaluated. If the text expression is evaluated to false, for loop is terminated. Yes, टेस्ट एक्सप्रेशन के ॿियो हिकिड़ी ॿी वर्ड बि यूज़ कंदा आहियूं, जेको I is equal is less than 11 आहे न, हिनखे चवंदा आहियूं जेको कंडीशन बि चवंदा आहियूं। अगरि कंडीशन ट्रू थींदी त तव्हांजो लूप एग्जीक्यूट थींदो, अगरि कंडीशन फॉल्स थी वेंदी त तव्हांजो लूप जेको आहे एग्जीक्यूट कोन थींदो, टर्मिनेट थी वेंदो। हाणे इन जो एग्जांपल तव्हांखे ईअं ॾियां, जीअं ही चए पियो न हिते यहाँ पे ये बोल रहा है कि i is less than 11, तो अगर जब i की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, क्योंकि ये इंक्रीमेंट बाय 1 हो रहा है ना, i प्लस प्लस का मतलब ये हर बार i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता जा रहा है। पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, इसकी आप देख लें नीचे वैल्यू भी आ रही है, ठीक है, तो हर बार इसमें इंक्रीमेंट हो रही है। तो जब i की वैल्यू से सपोज 11 हो गई, ठीक है, कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे जो है, यस हु इज देयर, प्लस प्लस आई लिखा है तो वो जो है हमें प्लस प्लस आई ही लिखना है। नहीं, i प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस प्लस i भी लिख सकते हैं, दीज आर टू मेथड्स। 2 प्लस लिख सकते हैं हम, 3 प्लस नहीं लिख सकते। सॉरी, मतलब आपने 2 प्लस लगाए, प्लस प्लस आई, अगर हम प्लस 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 लगाएं तो नो, इसी तरीके से लिखना है, या तो i प्लस प्लस i प्लस प्लस, बेसिकली इसका मतलब ये है i प्लस 1, इसका मतलब ये है बेसिकली i प्लस प्लस का मतलब ये हो गया, या प्लस प्लस i का मतलब ये हो गया कि i प्लस 1 मीन्स i की जो वैल्यू है उसमें जो है 1 ऐड करो, ठीक है, जैसे i की वैल्यू 1 है ना, उसमें हर बार 1 ऐड होता जाएगा। मतलब हमें कि सिर्फ प्लस कर सकते हैं। बिल्कुल, हमें हर बार जो हम क्या करते हैं इसमें इंक्रीमेंट बाय 1 कर रहे हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट बाय 1 से मुराद ये है पहले i की वैल्यू 1 है ना, उसके बाद हमें उसकी वैल्यू 2 करनी है, क्योंकि हमें लूप को चलाना है सीक्वेंस वाइज, ठीक है। पहले i की वैल्यू 1 है, क्योंकि ये बोल रहा है 1 से लेकर 10 तक चले, लेस देन 11 मतलब 10। अब इसमें इंक्रीमेंट कैसे हो, सबसे पहली बात तो ये है, तो इसके लिए हमने ये स्टेटमेंट यूज की है प्लस प्लस आई। इसमें क्या होता है, हर बार ये एक बार उसमें इंक्रीमेंट करता जाता है। जैसे पहले यहाँ पे i की वैल्यू 1 थी ना, जब प्लस प्लस आई होगा ना तो i की वैल्यू 1 प्लस 1, प्लस प्लस आई का मतलब है 1 i प्लस 1, ठीक है, i प्लस 1, तो i की वैल्यू पहले 1 थी, तो 1 प्लस 1 अब 2 हो गई, तब यहाँ पे भी 2 आ गई, फिर चेक होगा 2 इज लेस देन 11, अगर कंडीशन ट्रू है तो जो है लूप की बॉडी जो एग्जीक्यूट होगी और इसमें इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, जब इंक्रीमेंट होगी तो 2, जो i की वैल्यू अब 2 थी तो 2 प्लस 1 3 हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे i की वैल्यू 3 हुई, तो चेक करेगा 3 इज लेस देन 11, ये चीज तब तक चलती जाएगी जब i की वैल्यू से सपोज यहाँ पे 11 आ गई, तो चेक करेगा इज 11 इज लेस देन 11, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, 11 लेस देन 11 नहीं है। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा लूप का टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, और लूप के लास्ट में अगर कोई चीज लिखी होगी तो वो प्रिंट होगा, नहीं तो हमारा प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो टेस्ट एक्सप्रेशन का जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये जो सेंटर में i इज लेस देन 11, ये जो भी XYZ इसको आप कह रहे हैं, ये हमारी बेसिकली कंडीशन भी होती है और उसको टेस्ट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। यही डिसाइड करता है कि हमारा लूप फर्दर एग्जीक्यूट होगा या नहीं, इसके हिसाब से लूप हमारा सारा काम करता है। तो 3 चीजें होती हैं, एक ये होता है, यस सर फॉर लूप जो है वो हमारा लेस देन के लिए यूज होता है, इसमें हम ग्रेटर नहीं कर सकते। कर सकते हैं, दिस इज जस्ट एग्जांपल। अभी तो मैंने जस्ट यहाँ का जो एग्जांपल है मैं उसी के हिसाब से मैंने अपना जो कोई भी प्रोग्राम अभी तक नहीं, ये जस्ट मैंने इज फॉर एग्जांपल में बता रहा हूँ। हम कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, दैट्स अप टू अस। Okay, the theory was about this, that however, if the test expression is evaluated to true, statement inside the body of the for loop are executed and the update expression is updated. Okay, again the test expression is executed, the process goes on until the test expression is false. When the test expression is false, the loop terminates. ये सारी बातें अगर आपको मेरी समझ में आ गई हो तो ये सारी बातें मैं रिपीट कर चुका हूँ। Now ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एक, इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। अगर कोई बंदा ये चीज भी समझ गया ना
तो उसको पता चल जाएगा कि लूप मतलब काफी ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनकी ये चीजें हैं, इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं, जिसके लिए फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बेसिकली फ्लो चार्ट को ध्यान से समझो, अगर फ्लो चार्ट भी समझ गए ना तो आपको वर्किंग मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा कि लूप बेसिकली काम कैसे करता है। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन को समझो ऐसे कि जैसे था ना, फोर फोर लिखा हुआ था, फिर i इज इक्वल टू 1 जो लिखा हुआ था, तो ये समझो आपका इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है i इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन वो है। देन यहाँ पे आपका है टेस्ट एक्सप्रेशन, इसको डायमंड शेप में इसलिए लिखा गया है, इसको बोलते हैं कंडीशन। जो भी कंडीशन होती है ना, जो चेक होनी है ट्रू है या फॉल्स है, उसको डायमंड शेप में लिखा होता है, ठीक है। ये टेस्ट एक्सप्रेशन है इफ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। इस फ्लो चार्ट का मतलब ये है। अब ये फ्लो चार्ट इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये प्रोग्राम का फ्लो हमें बता रही है कि प्रोग्राम कैसे स्टार्ट हो रहा है और उसका फ्लो कैसे जो नीचे अप टू फ्रंट टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, देन वी हैव टेस्ट एक्सप्रेशन। इफ टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू मींस अगर जो कंडीशन हमारी थी कि i इज लेस देन 10, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई देन फॉर लूप की जो बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। एंड देन अपडेट एक्सप्रेशन, अगर से सपोज जो है हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो गई, जैसे वहां पे था ना कि जो है i इज लेस देन 11, अगर जो है i की वैल्यू हमारे पास 11 हो गई और 11 इज लेस देन 11, कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो हमारा लूप जो है यहाँ से मतलब कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो हमारा फॉर लूप का जो एंड है वहां पे जो है कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा और लूप से हम टर्मिनेट हो जाएंगे। और अगर हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू हुई तो फॉर लूप की जो बॉडी होगी, यस ओके, फॉर लूप की जो बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। उसके बाद जो है अपडेट एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि उसमें जो फिर फर्दर जो इंक्रीमेंट हो रही थी बाय 1 वो होगी। देन अगेन टेस्ट एक्सप्रेशन पे आएगा, ठीक है। टेस्ट एक्सप्रेशन पे चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या नहीं, अगर कंडीशन ट्रू है तो जो है अगेन फॉर लूप की बॉडी पे आएगा और फिर अपडेट एक्सप्रेशन होगी, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट। तो लूप ऐसे काम करता है। यस, एनीवन हैज क्वेश्चन कि ये कैसे वर्किंग मैकेनिज्म, क्योंकि ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पर्टिकुलर ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट डायग्राम दैट इज सेड टू बी फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन इज देयर, वी हैव टेस्ट एक्सप्रेशन, फॉर लूप की बॉडी है, देन अपडेट एक्सप्रेशन। ये कुछ समझ में आया? अगर आया तो भी बताएं, ना आया तो भी बताएं। क्या इतने सारे स्टूडेंट हो, एटलीस्ट कोई तो आंसर करो। सर ये फोर लूप जो है वो सिर्फ न्यूमेरिक्स में यूज, फॉर लूप जस्ट ये फोर लूप जो फॉर्मूला है वो सिर्फ न्यूमेरिक्स में यूज होगा क्या? नंबर्स ये पूछ रहे हैं? जी सर। नंबर्स पे भी यूज हो सकता है, स्ट्रिंग्स पे भी यूज हो सकता है। अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसके सॉरी जो अंदर जो है जैसे i इज लेस देन 1, ये चीजें आप पूछ रहे हैं कि इसमें सिर्फ हम नंबर्स ही लिख सकते हैं, तो हाँ, उसको जो है इनिशियलाइजेशन वगैरह उसके लिए वेरिएबल्स यूज करते हैं तो उसमें नंबर्स लिखते हैं। बाकी उसकी बॉडी में हम कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, जो भी हमें चीज प्रिंट करानी है, जिस चीज की भी रिपीटेशन करानी है वो हम करा सकते हैं। लेकिन फॉर लूप का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें नंबर्स यूज करने पड़ते हैं, इंटीजर्स यूज करने पड़ते हैं कि जो है फॉर लूप की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, उसकी कंडीशन कहाँ तक चल रही है, और उसमें इंक्रीमेंट बाय 1 हो रही है, बाय 2 हो रही है। और जैसे i प्लस प्लस लिखा हुआ था ना, उसकी जगह पे i माइनस माइनस भी होता है, लेकिन अगर अभी में i माइनस माइनस पे आया ना तो सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। पूछने वाला था कि मतलब फिर उधर होना पड़ेगा 10 to 1 करना पड़ेगा तो ना। गुलाम नबी तव्हांजो वॉइस थोड़ो मूंखे क्लियर करे ॿुधायो एक्चुअली। सर जीअं तव्हां चयो न माइनस माइनस त इहो मूंखे पुछिणो हो त हिन में पोइ वरी तव्हांखे मथे इहो इंटू 10 into 1 करिणो पवंदो न पाण। जी 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 बिल्कुल माइनस की 1 1 by 1 माइनस बिल्कुल 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 इनिशियलाइजेशन पोइ तव्हां ये चवणु चाहियो पिया
त इनिशियलाइजेशन पोइ असांखे 10 खां करणी पवंदी, ठीकु आहे। ये जी जी बिल्कुल, जीअं असां इनिशियलाइजेशन हींअर 1 खां कई आहे न, त लूप जेको 1 खां स्टार्ट थिए पियो ऐं जेको हर वारे हुन में इंक्रीमेंट थिए पई, पर जॾहिं असां डिक्रीमेंट, छो जो आई माइनस माइनस जो मतिलबु आहे असां हुन में डिक्रीमेंट करायूं पिया। 10 into 1 करणो जी जी बिल्कुल, इनिशियलाइजेशन 10 खां कराईंदासीं ऐं हुन में हर वारे जेको डिक्रीमेंट कराईंदा वेंदासीं ऐं जेको पोइ असांखे टेस्ट एक्सप्रेशन बि हुन हिसाब सां रखणी पवंदी, ठीकु आहे। त बिल्कुल ईअं ई आहे जीअं तव्हां चओ पिया। सर मेरी बात सुनिएगा। यस सर जैसे अभी आपने ना ट्रू में करके दिखाया ना, वैसे आप फाल्स में भी प्रैक्टिकल करके दिखाएं हमें। बिल्कुल, अभी मैंने कोई भी प्रैक्टिकल नहीं कराया। ये जो है ना, यहाँ पे मुझे जो प्रैक्टिकल शो हो रहा था ना, ट्रीज हो रहे थे ना 1 2 3, वैसे ही आप फाल्स में भी करें। ओके ओके। नाउ थिंग इज दिस, एक्चुअली जो फर्स्ट सेशन है ना, उसमें जस्ट 2 मिनट्स रिमेनिंग है, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा टाइम जो है इसी में ही थोड़ा कंज्यूम कर लिया और मैंने मोटिवेशन जो